biggest achievement in 2022. As was informed, I recently got national award. आप सभी TIOL जानते होंगे. ऑनलाइन the biggest web portal today, जिसे सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सारे टैक्स प्रैक्टिशनर्स और सारे ऑफिसर्स रेफर करते हैं for all taxation related matters. So I was adjudged as the silver trophy winner in the taxation category. Also recently, जो मैं आपसे litigation की बात कर रहा हूँ, my endeavor as a professional is empowering my professional friends. So I have even recently launched a book जिसमें सिर्फ IT से related there are 40+ replies. क्योंकि अब एक चीज आप भी मानेंगे, आज litigation जो हम बोल रहे हो इतना बढ़ गया है, it is not possible कि आप हर reply के लिए विशाल पोद्दार के पास या किसी के पास आएंगे. So I decided to make a draft reply of common 40+ issues जो day to day आपको IT से related आ रहे हैं. So this is a recent book which I have launched, which covers 40+ replies on day to day ITC issues. जिसमें से कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं, and I'm sure this book will help you simply prepare the reply that you need to give to the officer against the notices or orders that you are receiving related to ITC. Fine. Now before I start my session, I always like to link my subject with things around me. और मैं अपने कल्चर से बहुत क्लोजली अटैच्ड हूँ. So I always try to link things with our culture. हमारे कल्चर में कॉन्सेप्ट है. The concept is of त्रिदेव. I hope everybody knows the Tridev of Indian culture. Brahma, Vishnu, Mahesh. Now interestingly, अगर मैंने आपसे ये कहा कि ये सेम कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कल्चर भी फॉलो करता है, because when they refer to God, they are not referring to Almighty, they are referring to Tridev, where G stands for generator, Brahma, O stands for organizer, Vishnu, and D stands for destroyer, Shiva. So even the Western philosophy accepts our Indian terminology of Tridev in the form of God. Now, how is our subject of taxation dealing with this philosophy? The answer is simple. In taxation, the role of Brahma, that is a creator, is played by the lawmaker. हमारे GST में कुछ हद तक council भी ये role play करता है. Most important, the role of Vishnu is we all are Vishnus of taxation. Please आपने खुद के लिए एक बार क्लैप करना चाहिए, क्योंकि जॉइंट कमिश्नर मैडम अगर बोल के गए हैं कि शामिली का टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा है, तो आई थिंक इसका 80% क्रेडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स प्रैक्टिशनर्स को जाना चाहिए. बिकॉज वी हैव टॉइल्ड डे एंड नाइट. जब पोर्टल नहीं चल रहा था, हमने हमारा पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस करके रिटर्न्स फाइल किए, टैक्स पे करवाए, 990 में टैक्स पे करवाए, एंड दैट इज व्हाई इंडिया हैज क्रॉस्ड 1.5 lakh plus tax collection per month. So we should give a big round of clap for our own selves. We are the Vishnus of taxation because our role is the implementation. And then the most important role in a very new law like GST is of Shiva, which is the judiciary. Now, if I observe last 2 years decision, मेरा फीलिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आपने लिटिगेशन में क्यों आना चाहिए. बिकॉज ऑफ लेट अगर आप डिसीजंस देखेंगे तो मेनी ऑफ द डिसीजंस आर असेसी फेवरिंग. दिस गिव्स मी कॉन्फिडेंस एज अ कंसल्टेंट कि मैं मेरे क्लाइंट को बोलूं नहीं सर हम लड़ेंगे, क्योंकि अब जो कोर्ट का अगर आप रिसेंट पिछले 2 साल में अगर आप अप्रोच देखेंगे तो वो बायस नहीं है रेवेन्यू साइड. Fortunately, we have now such good judges in the courts who are giving a neutral decision. और काफी सारे decisions जो आ चुके हैं और जो अभी piled up है, I am sure it will be favoring the assessee. And this gives a big boost for us to ask our clients कि boss litigation के लिए ready रहो, क्योंकि litigation में you can get a favorable order for your business. Okay, so this is how our subject of taxation is linked to our Indian philosophy of Tridev. Now, just a small revision. GST क्या है? पार्लियामेंट ने GST को क्या फुल फॉर्म दिया है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? गुड एंड सिंपल टैक्स. इस पे कोई कमेंट नहीं है, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं. माननीय उस वक्त के ऑपोजिशन लीडर ने उन्हें क्या फुल फॉर्म दिया? गब्बर सिंह टैक्स. काफी फेमस हुआ था सेकेंड इलेक्शन के बाद. बिजनेसमैन इसे क्या बोलता है? बहुत सारे मारवाड़ी बिजनेसमैन होते हैं तो वो इसे मारवाड़ी
सर घणो सारो टैक्स है। सो जीएसटी का बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से फुल फॉर्म क्या है? घणो सारो टैक्स। और फिर आता है हमें एप्लीकेबल फुल फॉर्म। ये फुल फॉर्म मुझे मेरी वाइफ ने दिया था जब मैं जीएसटी से रिलेटेड बहुत ट्रैवल करते रहता था। उसने बोला विशाल यू आर जीएसटी। आई थॉट शी इज प्रेजिंग माय नॉलेज। देन आई रियलाइज्ड नॉलेज वगैरह नहीं। उसने बोला भाई यू हैव बिकम जीएसटी। घर संसार त्यागी। एंड श्योर जो फुल्ली जीएसटी प्रैक्टिस में उसकी हालत यही है। यू एग्री टू दिस? नो प्रॉब्लम बॉस। हर नई चीज को साध्य करना पड़ता है और उसके लिए आपको मेहनत करनी है। 4-5 साल की मेहनत है एंड देन इट विल टेक यू टू अ डिफरेंट लेवल। सो लेट अस वर्क टुगेदर, लेट अस ऑल बिकम त्यागी एंड वर्क फॉर अचीविंग सुप्रीमेसी इन जीएसटी लॉ। ओके, अब आज का जो टॉपिक है ऐसा डिस्कस्ड, फर्स्ट इज समथिंग अबाउट लिटिगेशन एंड देन रिलेटिंग इश्यूज एंड जजमेंट्स इन आईटीसी जो आप यूज कर सकते हैं आपके अलग-अलग लिटिगेशन में जो आईटीसी से रिलेटेड है। नाउ सबसे पहली बात, व्हेन आई से मैनेजिंग लिटिगेशन व्हाट डू आई मीन? प्लीज आज मेरी कोशिश रहेगी कि यहां से जाने के पहले एटलीस्ट मैं आप सभी को एक राह देके जाऊं कि हाउ यू कैन स्टार्ट योर ओन लिटिगेशन प्रैक्टिस। व्हेन आई से मैनेजिंग लिटिगेशन मींस व्हाट? मैनेजिंग लिटिगेशन डज नॉट मींस आस्किंग योर क्लाइंट टू गेट इनटू लिटिगेशन। सी, जब हम लिटिगेशन प्रैक्टिस की बात करते हैं, आई थिंक सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये डिसाइड करना कि किस चीज को लिटिगेशन में लेके जाना है और किसी को यहीं पे खत्म करना है। दैट इज व्हाट इज मैनेजिंग लिटिगेशन एंड दिस यू कैन वेरी वेल डू बाय स्टडीइंग व्हाट आर द प्रेजेंट डिसीजंस एंड देन एनालाइजिंग कि आपका क्लाइंट उस सिचुएशन में कहां खड़ा है। जहां पे आपको लगता है कि वो मोर देन 50% फेवरेबल कंडीशन में, देन ओनली you should ask your client ki boss you should go in litigation because there is a good possibility keeping in mind the recent decisions कि आपको फेवरिंग ऑर्डर आएगा। अगर वही वाइस वर्सा केस है, क्लाइंट का जो मैटर है उससे रिलेटेड आज तक जो डिसीजंस आ रहे हैं वो नेगेटिव ज्यादा है, then maybe you can advise your client कि बॉस इसे हम लिटिगेशन में नहीं लेके जाते, let us settle it here itself। Also अगर आप ऑब्जर्व करेंगे पिछले अगस्त 2022 से बहुत सारे नोटिफिकेशन अमेंडमेंट्स आए और बहुत सारे सर्कुलर्स आए। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे मुझे पर्सनली लग रहा है इवन गवर्नमेंट इंटेंड्स टू पुट एन एंड टू लिटिगेशन। आप देखिए कितने सारे जो सर्कुलर्स आए अगस्त के बाद, उसमें इतनी सेंसिटिव चीजों को क्लैरिफाई किया है जिसके ऊपर डिस्प्यूट लाइक लेट फी, पेनल्टी, टैक्स होगा या नहीं होगा, उस पर बहुत सारा डिस्प्यूट चालू था। सर्कुलर बोलता भाई पेनल्टी में कोई सर्विस कोई सप्लाई इन्वॉल्व नहीं है, नो जीएसटी। सिमिलरली अभी एकदम लेटेस्ट सर्कुलर कौन सा 2017, 18, 18, 19 मिसमैच। प्लीज आपको ये भी अंडरस्टैंड करना है, आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि गवर्नमेंट का विजन क्या दिख रहा है। गवर्नमेंट का भी विजन दिख रहा है कि उन्हें लिटिगेशन कम करना है और ये वापस मुझे स्ट्रेंथ देता है मेरे क्लाइंट को ये बताने के लिए कि बॉस टेक अ स्टैंड, क्योंकि चांसेस है या तो फेवरिंग सर्कुलर आएगा या चांसेस है फेवरिंग डिसीजन आएगा। जैसे अब तक काफी सारे आ चुके हैं, मोहित मिनल केस आ चुका है ऑलरेडी, ओडिशा हाई कोर्ट ने लैंड रिलेटेड या रियल एस्टेट रिलेटेड बोला है कि आप आईटीसी ले सकते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। These are very favoring indications even government wants to reduce litigation. So please observe जो पैटर्न चल रहा है, अगर आप वो पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे इट इज गिविंग इंक्लिनेशन कि हमें लिटिगेशन की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को भी अभी लिटिगेशन कम करना है। सो टेक अप ऑल सेंसिटिव केसेस ऑफ योर क्लाइंट, रीड अबाउट इट, उससे रिलेटेड क्या सर्कुलर, क्या लेटेस्ट कोई डेवलपमेंट है एंड देन एडवाइज योर क्लाइंट। आई अश्योर यू आप कभी भी फेल नहीं होंगे। नाउ हाउ टू टेक अप एनी लिटिगेशन मैटर? आई ऑलवेज से follow KYC. What is KYC? Know the case. Know the case जो आपके पास आया है litigation के लिए। What is the first thing? सबसे पहली चीज जब आपको litigation में उतरना है, please know who are the authorities and what are their powers under GST. For example, GST audit, DGGI, anti-evasion, DRI. These are some of the authorities जो बहुत actively action ले रहे हैं। But do you know one thing? जितने भी अथॉरिटीज के मैंने नाम लिखे, none of the authority is an adjudicating authority. They are all investigating authorities. कितनी बार होता ये है, हमारा क्लाइंट फोन करता है कि सर मुझे समन्स आए हैं डीजीजीआई से,
सर मुझे नोटिस आई है DRI से, सर मेरे पास GST ऑडिट या DGGI वाले आ गए